my dear girls and boys of class 10, what we have read? We have a poem including all my friends. हम पिछले पीरियड में बेटा इस पोएम पर चर्चा हुई थी। इसका अनुवाद मैंने तुम लोगों को पूरा बता दिया था और इसके जो है मीनिंग इत्यादि बता दिया है ना। कॉम्प्रिहेंशन भी हो गया है। आते हैं नंबर 2, टिक राइट करेक्ट statements about the poem. You may choose more than one option. ठीक है? उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3. Who are the bad guys mentioned in the poem? Why are they called bad guys? 4. List of things the bad guys bother the children about. Question number 5. What can we understand if we use more than our sight? Last one. Why do you think these lines have been spoken? These are the questions of the poem. Name of that poem, including all my friends, has been finished, and do their exercises carefully. Today we will read Reading C. Look at this lesson carefully. What is the name of this lesson? Reading C. An open letter to the teacher from a child with attempts. An open letter to the teacher. Look at this title carefully. What it is saying? An open letter. Do you know what is saying? Nobody can tell. I have taught you part of speech and other matters also. As for part of speech, noun, pronoun, adjective, adverb, verb, preposition, conjunction and interjection, these are all part of speech. And other matters, as for article. What is article? Do you know? Article is a word which is used in a sentence to join the sentence. आर्टिकल वह अपवाद है जो वाक्य को जोड़ने में सहयोग करता है। ये है बेटा आर्टिकल का परिभाषा या पहचान। हाउ कैन यू टेल दैट इट इज ए आर्टिकल? आई हैव टोल्ड यू that article joins the words in a sentence. Understand? An example of articles which has been given in your lesson
N. The name of the article is N. Understand? And we know that article has two kinds. How many kinds of article? There are two kinds of article, definite and indefinite. Which is definite article? The is a definite article, and A and N is N and A. These are indefinite articles. हिंदी में सुनो इसको, देखो। आर्टिकल बताया ना बेटा, आर्टिकल के दो भेद हैं, डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल। तो डेफिनिट आर्टिकल में आते वो है द, और इनडेफिनिट आर्टिकल में आते ए एन। इस प्रकार से आर्टिकल तीन ठन है। कितने है? तीन। और ये आर्टिकल परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, इसलिए ग्रामर में इस आर्टिकल को बड़े ध्यान से पढ़ना, समझना और उपयोग करना। किसी भी तरह से प्रश्न दिया जा सकता है। समझ में आया ना? कंप्लीट a sentence or complete alternatives etc. किसी तरह से पूछ सकता है। समझ में आया? तो अभी मैं तुम लोगों को बता रहा था डेफिनिट आर्टिकल द किस स्थिति पर द का उपयोग होगा सेंटेंस में, इसको समझ लेना है। द आर्टिकल का उपयोग अक्सर पर्टिकुलर जो वस्तुएं हैं, जो नेम्स हैं, इनके पहले बैठता है। As for example, the Ganga is a holy river. समझ आया ना? गंगा हमारे भारत की एक पवित्र नदी है। गंगा इज ए होली रिवर इन इंडिया। समझ आया? तो इस सेंटेंस में हमने देखा कि द हैज कम बिफोर गंगा। And what is Ganga? We know that Ganga is a particular name. It means proper noun. Understand? Particular names are called proper noun. Common names are called common noun. Materials are called material noun. And collection, these are called collective. And last one,
which can't be seen or touched, only in a feeling, that is called abstract noun. तो इस तरह से जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के पहली यह आते कोना द समझ में आए ना। तो द का उपयोग जो है कैसे कब होता है इसको मैंने तुमको बताया समझाया बेटा। अब देखो इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल एन है और ए है। एन का उपयोग कब होगा और ए का उपयोग कब होगा इसको अच्छी तरह से समझ लेना है। एन का उपयोग बेटा सेंटेंस में कब करेंगे जब जो शब्द है वो वावेल से शुरू होगा। वावेल तो जानते हो क्या कहते हैं हिंदी में? स्वर। जैसे हमारे मातृभाषा में 13 स्वर है, परंतु आंग्ल भाषा इंग्लिश में only there are 5 vowels. What are they? They are A, E, I, O, U. These 5 words, 5 letters are called vowels. ये 5 अक्षर स्वर कहलाते हैं अंग्रेजी में। 26 अक्षरों में 5 अक्षर जो अभी जो मैंने तुमको बताया इन्हीं का नाम है स्वर। और जो भी शब्द इन स्वरों से शुरू होता है उसके पहले ये आर्टिकल आता है। कौन सा? एन। जैसे एन अम्ब्रेला, UMBERR, UMB है RRA LA। अम्ब्रेला का यू से शुरू होता है। एप्पल एन एप्पल, ठीक है। उसी तरह से और भी शब्द हैं जो इस तरह से स्वरों से शुरू होते हैं। जैसे इंक पॉट, इंक पॉट INKPOT। इंक पॉट का मतलब दाल। तो चूंकि आई से शुरू हो रहा है इसलिए कौन सा आर्टिकल लगेगा? एन। ए नहीं लगेगा। समझ आ गया? तो ये 5 स्वरों से प्रारंभ होने वाले शब्दों के पहले आता है। इसकी गणना यद्यपि अनिश्चित आर्टिकल कहलाते हैं। इनडेफिनिट, अनिश्चित। समझ में आया ना? परंतु इसका उपयोग विशेष रूप से इन्हीं 5 स्वरों से प्रारंभ होने वाले शब्दों के पहले ही उपयोग करोगे या आता है। इसकी जानकारी रखना बेटा, बहुत महत्वपूर्ण है। अब आ जाओ ए पर। ए भी एक इंडेफिनिट आर्टिकल है।
दिस इज ए बुक। सामान्य जब कोई वस्तु है जहां एक का बोध होता है, उसके पहले ए आर्टिकल का उपयोग होता है। जैसे अभी मैंने तुमको सेंटेंस बना करके बताया, दिस इज ए बुक, या एक पुस्तक, ठीक है। तो इस तरह से ये आर्टिकल हैं और इन आर्टिकलों का उपयोग है परीक्षा के दृष्टिकोण से। बेटा ये पाठ, ये आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इस लेसन को पढ़ाने के पहले तुमको इसके बारे में बता दिया। An open letters to the teacher from a child with atoms। शिक्षक को खुला पत्र, ओपन लेटर्स। व्हाट इज ओपन? ओपन इज ए वर्ड। ओपन इज ए वर्ड। डू यू नो वर्ड? वर्ब माने क्रिया। अच्छा, क्रिया की परिभाषा हिंदी में बताओ कैसे? हैं? करत की क्रिया जेकर से कोई काम के होना या करना पाए जाते, ओला क्रिया जाने हो? अंग्रेजी में व्हाट इज वर्ब? तो काली को वर्ब इज ए वर्ड। क्रिया व शब्द है। वर्ब इज ए वर्ड which shows action, which shows action, जो वाक्य का होना या करना दिखाता है, that is called verb। Understand? The cow gives milk. In this sentence, which is verb in this sentence? The cow gives milk. In this sentence, what is cow? Cow is noun and cow is common noun. Gives is verb. Place of verb in a sentence, it comes always after subject। क्रिया हमारे इस अंग्रेजी में कर्ता के बाद आते, यही नियम है। पहले कर्ता लिखू, ओकर बाद क्रिया, तेकर बाद कर्म और ओकर बाद आही पूरा। ऐसे वाक्य के रचना होते। समझ में आया ना? तो अंग्रेजी में इसमें नियम है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सब्जेक्ट, देन आफ्टर वर्ब, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट, देन आफ्टर कॉम्प्लीमेंट। अंडरस्टैंड? As I have told you an example of sentence, the cow gives milk. In this sentence, cow is subject, gives is verb, and milk is object. Understand?
तो ये मैं बता रहा था अभी कि ओपन, एन ओपन लेटर्स, open is also verb, but it is not transitive. There are two kinds of verb, transitive and intransitive. हिंदी में जैसे दो प्रकार की क्रिया होते और इसमें अंग्रेजी में भला दो प्रकार की क्रिया होती। कौन कौन से है? सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया वाला कहते जेकर से क्या के प्रश्न करो तो प्रश्न बन जाते और उत्तर भला बराबर निकल जाते, ऐसी क्रियाओं को सकर्मक क्रिया कहते। और क्या का प्रश्न करने पर प्रश्न भी ठीक नहीं जनता, उत्तर भी ठीक नहीं निकलता, ऐसी क्रियाओं को अकर्मक क्रिया कहते हैं। समझ में आया ना? इन इंग्लिश, if we do a question of why, then we can get an answer, then it is transitive verb. If we can't get object, then it is not called transitive, but it is intransitive verb. Example of transitive verbs, I have told you, the cow gives milk in this sentence. Gives is a transitive verb because when we do a question of what in this sentence, we can get its answer. So it is transitive. Understand? तो बेटा देखो, रीडिंग सी के अंतर्गत एन ओपन लेटर्स टू द टीचर फ्रॉम द चाइल्ड विथ एटम्स, ये अगले पीरियड में पढ़ाऊंगा। ठीक।